اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر جلگاؤں ضلع کے پالدی سے آ رہی ہے۔ جلگاؤں شہر سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے پالدی۔ پالدی میں گائے کا گوشت لے جانے کے شبے میں ایک ٹرک کو آگ لگا دی گئی۔ ہجوم نے ڈرائیور اور کلینر کی بھی بے رحمی سے پٹائی کی۔ آخر پولیس کا بیان آیا ہے کہ وہ چمڑا لے جا رہا تھا، یعنی اس ٹرک میں چمڑا لے جایا جا رہا تھا۔ انڈیا ٹی وی کی خبر کے مطابق اس واقعے کی وجہ سے پالدی گاؤں سمیت علاقے میں جمعرات کی دیر رات تک کشیدگی برقرار رہی۔ جمعرات کی رات تقریباً 9 بجے بمبوری ایس ایس بی ٹی کالج کے قریب پیٹرول پمپ پر ایک ٹرک رکا۔ کچھ نوجوانوں کو بدبو کی وجہ سے شک ہوا، پھر انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹرک ڈرائیور نے بے ترتیب جوابات دیے۔ اس کے بعد پیٹرول پمپ کے ملازمین نے نوجوانوں کے ساتھ تھانے میں فون کر کے اطلاع دی۔ اس کے فوراً بعد ایک پولیس اہلکار پیٹرول پمپ پر پہنچ گیا، جہاں سے پولیس اہلکار ٹرک کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ٹرک کے پیچھے آنے والے نوجوانوں کو شک تھا کہ ٹرک تھانے کی طرف نہیں بلکہ محلے کی طرف جا رہا ہے۔ نوجوانوں کا خیال تھا کہ پولیس نے ٹرک کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے انہوں نے ٹرک کا پیچھا کیا، اسے روکا۔ اس کے بعد نوجوانوں نے ٹرک ڈرائیور کی پٹائی کی، کلینر کی پٹائی کی اور ٹرک کو آگ لگا دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قانون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یا بس اسی طریقے سے آتنک چلتا رہے گا؟ یہ ہمارے اپنے شہر سے 10 کلومیٹر کا واقعہ ہے۔ اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان آتنکیوں پر باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، حکومت کی انتظامیہ کی جانب سے کڑی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، نو سے ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح میں بھگوا آتنکوادیوں نے خوب آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، لیکن ایسے وقت میں ایک سرپنچ ہے گاؤں کے شوکت علی، انہوں نے ایک بڑا رول ادا کیا۔ گروکل کو بچانے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ لاٹھیاں لے کر فسادیوں کے، دنگائیوں کے ہجوم کے سامنے شوکت علی کھڑے رہ گئے تھے۔ شوکت علی کہ اس معاملے کو لے کر علاقے میں کافی چرچا ہوئی، ان کے اس کام کی سراہنا ہوئی۔ جی ہاں، اور اس گاؤں کی 95% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ فسادیوں نے اپنے چہروں پر کپڑا باندھ رکھا تھا اور ان کی موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ اتاری ہوئی تھی۔ 400-500 فسادیوں کے اس ہجوم نے برے ارادے سے گروکل پر حملہ کیا تو شوکت علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سے بھڑ گئے۔ مقامی مسلمانوں کو
गुरुकुल के अतराफ लड़ते देखकर फसादी वापस चले गए। चंद घंटों बाद फसादियों ने फिर गुरुकुल पर हमला किया, लेकिन सरपंच शौकत अली ने दोबारा उन्हें खदेड़ दिया। इन तमाम चीज़ों को देखकर बाकायदा शौकत अली की काफ़ी सराहना की जा रही है और ख़बरें आ रही है कि अब सरपंच शौकत अली को अमन अवार्ड से नवाजा गया। और इसी गांव की जहाँ पर 95% मुस्लिम हैं, यहाँ की पिछली सरपंच अंजू बाला ने कहा कि शौकत अली तो मुबारकबाद के हकदार हैं, लेकिन पूरे गांव वाले भी मुबारकबाद के हकदार है और तारीफ के मुस्तहिक है, क्योंकि पूरे गांव वाले बाहर वालों के बहकावे में आए बगैर उन्होंने अमन कायम करने की कोशिशें की। ये गांव 95% मुस्लिम। इस खबर से लगता है कि नूह में मुसलमानों ने किस तरीके से अमन को बनाए रखा था, लेकिन भगवा आतंकियों ने कैसे माहौल को खराब किया। आइए दिन मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, वही मणिपुर जिस पर आज तक वजीर आजम 4 महीने होने पर आ रहे हैं। पूरा मणिपुर जल रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं, लोगों के टुकड़े किए जा रहे हैं, पूरा मणिपुर झुलस गया है, जल गया है। लेकिन बेशर्मी और बेगैरती के साथ हमारे पीएम खामोश है। अब उसी मणिपुर से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर फिर तशद्दुद भड़क उठा। 3 लाशें मिली है और जो लाशें मिली है उनके जिस्म पर चाकू के गहरे निशानात भी नजर आ रहे हैं। मणिपुर में जुमा की सुबह कुकी थोराई गांव में गोलीबारी का वाक़या पेश आया और गोलियों की आवाज़ से एक बार फिर फजा में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि जब पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई तो यहाँ जंगल के इलाके से 3 लाशें मिली है। ये लाशें 24 से 35 साल की उम्र के नौजवानों की है। पीएम मोदी साहब देखें कि मणिपुर आपकी खामोशी का क्या भुगतान भुगत रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जेल में कैद जोर आवर कद आवर लीडर मुख्तार अंसारी। खबर आ रही है कि इनकी बहू निखत बानो चित्रकूट जेल से रिहा कर दी गई। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले इनकी बहू मुख्तार अंसारी की बहू निखत की गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनकी रिहाई हुई है। खबर रसा इदारे के मुताबिक अदालत ने कहा कि इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि दरखास्त गुजार खातून है और उसका 1 साल का बच्चा है और इस पस मंजर में दरखास्त गुजार पर लगाए गए इल्जामात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस MM की बेंच ने राहत देते हुए कहा कि अर्जी गुजार एक खातून है और 1 साल के बच्चे की मां है। आखिर 6 महीने पहले गिरफ्तार हुई निखत बानो को चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह रिहाई मिली है। नाज़रीन, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद, अब इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने की अपील की गई। हिंदू निशानात और अलामात के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ ली जा रही है। 22 अगस्त को सुनवाई है। कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जवाब दाखिल करेंगे मुस्लिम फरीक। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद इहाते का सर्वे जारी है और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी कुछ अर्जियां अदालत में समाअत का इंतजार कर रही है। इन्हीं अर्जियों में एक अर्जी ये भी है जिसमें नमाजियों की तादाद महदूद करने की अपील की गई है। अब 22 अगस्त को सुनवाई है। कानूनी पहलुओं से जायजा लेने के बाद मुस्लिम फरीक इस मामले में भी जवाब दाखिल करेगा। यानी अब ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद 2024 के इलेक्शन में बड़ी काम आएगी। दिन बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है। रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल से जुड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए और महाराष्ट्र से भी जुल्म, जालिम और यूँ समझिए अत्याचार, नाइंसाफ़ी और हिंदू मुस्लिम नफरतों को रोकने के लिए महाविकास अघाड़ी ने सुपर प्लान बनाया है बीजेपी को रोकने के लिए। क्योंकि बीजेपी को रोका गया तो जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी, हिंदू मुस्लिम दुश्मनियाँ सब खत्म हो जाएगी। इसलिए महाविकास अघाड़ी का सुपर प्लान सामने आया है। महायुति को शिकस्त देने के लिए सीटों की तकसीम का फार्मूला भी तैयार हो गया है। शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ने के बाद
महाराष्ट्र की सियासत का अब जुग्राफिया रियाजी सब बदल गया, लेकिन खोई हुई ताकत इत्तेहादी जमातों के दरमियान फूट के बावजूद महाविकास अघाड़ी अब ज्यादा मजबूती से इकट्ठी हो गई है। यही नहीं, महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी की क़यादत वाली महायुति को रोकने के लिए एक सुपर प्लान भी तैयार कर लिया है। महाविकास अघाड़ी ने महायुति को रोकने के लिए सीटों की तकसीम का नया फार्मूला भी तैयार कर लिया है। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश जहां पर कुदरत का कहर और कुदरत का गजब जारी है, वहां से खबरें आ रही है कि बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में तबाही हो रही है। 55 दिनों में लैंड स्लाइडिंग के 113 वाकयात हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, जिसमें अब तक 313 अफराद लुक़्मे अजल यानी मर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। शिमला के लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 74 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी है। शिमला के शिव मंदिर के मलबे से भी एक और लाश मिली है। इसके साथ ही चंबा जिले में मजीद 2 लोगों की मौत के बाद रियासत में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुताल्लिक वाक़यात में मरने वालों की तादाद 74 के करीब हो गई है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में इतनी तबाही क्यों हुई है? तबाही का जिम्मेदार कौन है? माहिरीन अर्जियात ने इस मसले पर रोशनी डाली है और कहा है कि पहाड़ों में बड़े पैमाने पर तामीराती काम जारी है। सड़क को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है। पहाड़ों की तामीर और जंगलात का कम होना हिमालय की उम्र को कम कर रहा है। तामीर की वजह से पहाड़ों में शगाफ पड़ रहे हैं। हिमाचल इसकी बड़ी मिसाल है। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो दुनियावी एतबार से बाकायदा बता दिया गया है माहिरीन अर्जियात ने और माहिरीन तामीरात ने, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ऊपर भी कोई सुप्रीम अदालत है, कोई रब है जो सब देख रहा है। तो जो कुछ बदमाशियां अगर हम लोग यानी इंसान होने के नाते कर रहे होंगे एक दूसरे को तकलीफ देने की, तो फिर समझ लें कि कुदरत का कहर और भी मजीद टूटेगा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुजरात की रहने वाली बिल्किस बानो जो हिंदुस्तान की सबसे मजलूम औरत है, जिसके 11 कातिलों को, जिसके खानदान के 11 कातिलों को और 11 रेपिस्टों को गुजरात की हुकूमत ने यानी बीजेपी ने रेपिस्टों को 15 अगस्त के दिन आज़ाद करवाया था। आखिर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को फटकार लगाई कि इनको छोड़ा कैसे। आखिर अभी फिर और खबर आ रही है कि बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार यानी बीजेपी और गुजरात की हुकूमतों ने अपने इक़दाम का दिफा किया। यानी गुजरात हुकूमत और केंद्र सरकार यानी बीजेपी हुकूमत ने, यानी कुल मिला के मोदी जी ने अपने जो घटिया काम हुए हैं उनका दिफा किया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, ये किया, वो किया। लेकिन दुनिया देख रही है कि बिल्किस बानो के रेप करने वाले और बिल्किस बानो के ख़ानदान के कातिलों को 15 अगस्त को आज़ाद करके आज़ादी के जश्न का भी मजाक बनाया गया था। लेकिन बिल्किस बानो हिम्मत नहीं हारी। बिल्किस बानो गुजरात कोर्ट के फैसले से नाराज़ होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को फटकार लगाई है। गुजरात हुकूमत की बेगैरती और बेशर्मी पर गुस्से का इजहार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। दिल्ली फसादात को लेकर खबर आ रही है। दिल्ली फसादात, आप जानते हैं कि 2020 में जो फसादात हुए थे, आज भी वो तमाम लोग आज़ाद घूम रहे हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी बिट्टू बजरंगी आतंकवादी की तरह, मोनू मानेसर की तरह, जिन्होंने दिल्ली फसादात को भड़काया था। आज भी वो सारे के सारे आज़ाद हैं। लेकिन कई बेकसूर मुसलमानों को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। अभी खबर आ रही कि दिल्ली फसादात 2020 में जिन मुसलमानों को उठाया गया था उनमें से 3 मुस्लिम मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर सबूतों और शवाहिद को छेड़छाड़ करने का
الزام خود عدالت نے تفتیشی افسر پر لگایا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے افسران ہیں، ادھیکاری ہے، انہی کی بدماشیاں تھی جو بے قصور مسلموں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا گیا. اور آج بھی اصل آتنکوادی جنہوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے فساد کو پھیلایا تھا اور ہنسا کو بھڑکایا تھا، وہ آج بھی آزاد ہیں. مہاراشٹر کے چندور ریلوے یعنی امراوتی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک تانترک جس نے تقریباً 1.5 لاکھ روپے لیا، اور کس بات کے؟ پیسوں کی بارش. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ اس میں پاگل ہیں، پیسوں کی بارش، پیسوں کی بارش. تو پیسوں کی بارش کرنے کے لیے تانترک نے 1.5 لاکھ روپے لیا، لیکن روپیے نہ ملنے پر، تانترک کو واپس نہ ملنے پر، گویا کہ تانترک کو بیلچے سے اور پیسوں کی بارش نہ ہونے پر اس تانترک کو، اس سادھو کو بیلچے سے مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس معاملے میں 5 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. رورل کرائم برانچ پولیس نے بدھ کے روز ناگپور کے رہائشی کملا عرف کملیش بابو راؤ میشرام 45، کملاکر صاحب راؤ 4 پہ 44 اور ایسے ہی تقریباً 5 لوگوں کو، 5 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کیا ہے.